Radhe Radhe. After a long time, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Before I proceed further, let me tell you the inspiration behind this name, why I've kept this name. We all know Arjun is a disciple of Krishna, like we are a disciple of Krishna. Like the Arjun has a goal in his life, he has a dream, उनका एक लक्ष्य था. In the same way, we also have some goal and dreams in our life. He also strives hard, work hard to reach his goal. In the same way, we also try work very hard. We are working very hard to reach our goal. And we also want that Krishna should run our chariot and help us to reach towards our goal and to our lakshya. So, today I am going to start our polity class. Basically, polity will going to have two classes. First is for the basic and the second one is for the advanced. Polity में जो basic होगा, that is we're going to cover a 11th and 12th class portion, a very basic, so that you can have your fundamentals very clear. And with that, we are going to reach with the Lakshmikant, which will have the advanced portion, जो कि इसमें हम थोड़ा advanced में और detailing में पढ़ेंगे. But to clear your base, we're going to start with our 11th and 12th NCERTs. We stick to that only. So let's start our today's topic, the first chapter of our 11th class book. What is Constitution? Why and how? As you can see on the board, I have already made the flow chart for you. Okay, let's start. Let's begin with this thing. This is for the basic students, and we are going to have a different class for the advanced students. Okay. Now, Constitution. The question is, before we reach further, Constitution हम सबने सुना है. Constitution क्या है? संविधान क्या है ये? क्यों है ये? क्यों बनाया गया है? Constitution क्यों बनाया है? अब, before we reach further, see. किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लेते हो, कहीं पे भी आप काम करते हो, तो इट हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं. ये रूल है, ये रेगुलेशन है, एंड वी आर बाइंड टू इट. हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं. अदरवाइज जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ही नहीं, तो क्या होगा? देयर विल बी अ chaos इन द होल सोसाइटी. क्रिएट chaos हो जाएगा. इन द सेम वे, जस्ट इमेजिन द कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी. इतना डाइवर्स रिलीजन है, इतनी एथनिसिटी है, दे हैव देयर ओन प्रोविजन, कल्चर्स, एवरीथिंग. Don't you think we also need certain rules and regulation? हमें भी कुछ rules and regulation की जरूरत है. अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी इतना chaos है, सबके अपने ओपिनियंस है, सब अपना थॉट्स रखते हैं. बट when we have certain rules, we have certain regulations, जहां हम कॉमन बेसिक रूल्स को अगर हम फॉलो करें, तो ये जो chaos है सोसाइटी में थोड़ा कम हो जाएगा. करेक्ट? So can I say that the Constitution is actually a fundamental rule? These are basic rules and procedures. कह सकती हूँ? Okay. So I will explain what is Constitution. ठीक है? ये तो मैंने बताया Constitution basic rules and regulation है which everyone has to follow. So in country like India, which we have so much of democracy, we are biggest democratic country. So now let's move forward. Why do we need a Constitution? हमारी country society को एक Constitution संविधान की जरूरत पड़ती क्यों है? खुद सोचना कि इसका जवाब इसी में है. एंड इफ यू अंडरस्टैंड, यही इसके फंक्शंस है. अगर हम ये सोचे ध्यान से कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इटसेल्फ एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट फंक्शन, एज यू कैन सी, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर एश्योरेंस. सी, फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. टर्म से ही बहुत ज्यादा क्लियर है. कोऑर्डिनेशन लाता है. कैसे लेके आता है? बिकॉज हम सर्टेन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. सिंपल, बिकॉज वी फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव सर्टेन व्हिच वी फॉलो, एंड दैट्स हाउ इट ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन अमंग सो मच डाइवर्स सोसाइटी. सबके अपने थॉट्स है, ओपिनियंस है. सो डोंट यू थिंक कि एक चीज पे हम स्टिक रहें, यही चीज हमें फॉलो करनी है, तो अपने आप से कोऑर्डिनेशन लेके आता है. विल कोऑपरेट बिकॉज वी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. समहाउ वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. So this is how we bring a coordination. Now the thing is, assurance कैसे आएगा? अब, okay, so we have study of coordination. तो कुछ में इतनी सारी डाइवर्सिटी में कुछ तो मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन लेके आएगा. करेक्ट? तो पहली जरूरत अपने आप से पता चल गया ना क्यों हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि थोड़ा कोऑर्डिनेशन आ सके. सबकी इतनी डाइवर्सिटी, सबकी इतनी सोच है, एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा calmness आ जाएगी, थोड़ा पीस आ जाएगा. We can live with a peace in a peace society, correct? So now we talk about what is assurance. यहाँ पे assurance का मतलब क्या है? Assurance term से क्लियर हो रहा है. आपको एक श्योरिटी दे. Just think, rules and regulations बना दिए जाए, लेकिन वो फॉलो ही ना किए जाए, उसका एनफोर्समेंट ही ना हो.
से फॉलो करके रख दिए जाए बना, तो डू यू थिंक वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे? डज इट दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सक्सेसफुल? और वी कैन से सेम कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं किसी स्कूल या मैं एडमिशन आप लेते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बना दिए जाए लेकिन वो एनफोर्स ही ना हो। इमेजिन इफ यू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड एक इंसान रूल फॉलो कर रहा है और एक इंसान रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सो अगर लेकिन उसके ऊपर इसके वायलेशन में, उस रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन में कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है, तो क्या दूसरा इंसान रूल फॉलो करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सो दिस विल, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका एनफोर्समेंट हो। जब एनफोर्समेंट होगा तो श्योरिटी मिलेगी कि नहीं नहीं दिस, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे, दिस विल एनफोर्स, ये काम करेगा। एंड द सेम वे अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ओके, so now we have done with the coordination and assurance कि we have certain rules, we have certain laws जो कि एक coordination, एक peace लेके आते हैं, peaceful where people will follow certain rules and regulations and that is also enforceable and that brings the assurance। तो assurance कैसे आएगी? Enforce, अगर जब वो rules and regulation enforce किए जाएंगे, correct? Coordination कैसे आएगी? जब कुछ basic rules and regulations फॉलो किए जाएंगे। सिंपल रूल्स बोलो, लॉ बोलो, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लॉ में बात करेंगे, ठीक है? लॉ है, आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें मैं इन कमिंग चैप्टर्स थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगी, बट जस्ट अवेयर ऑफ दोस टर्म्स की आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, ठीक है? सो नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग पावर। सेकंड, खुद दिमाग लगाओ, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। अब उससे पहले ये हमें ये समझना होगा कि मैंने ये तो बता दिया कि बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए, अब मुझे ये कौन बताएगा कि कौन है वो जो इंसान की यही लॉ है? अंडरस्टैंड, डिसीजन मेकिंग पावर, वो अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को कौन डिसाइड करेगा? ओनली दैट पर्सन की दिस इज अ लॉ, कि यार ये स्टेटमेंट लॉ है, ये स्टेटमेंट एक रूल है। अगर वो इंसान डिसाइड कर रहा है कि ये रूल है, ये लॉ है, इसका मतलब उसके पास एक अथॉरिटी है, ही हैज अ डिसीजन मेकिंग पावर। और अगर हम उसे डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं, व्हिच मींस ही हैज समथिंग इन हिज हैंड, कुछ तो सोचो, कोई भी लॉ बना दिया, समथिंग ही पुट अ लॉ लाइक कि इसको मार के आओ, या इसको हटा दो, या इस सोसाइटी, इससे इस रिलीजन को हटा दो, या इस ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप को हटा दो। डू यू थिंक हम कितनी बड़ी ताकत दे रहे हैं एक किसी भी स्टेटमेंट को लॉ बनाने का या रूल बनाने का? तो डोंट यू थिंक हमें बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए कि ये डिसीजन मेकिंग की पावर, ये अथॉरिटी की पावर हम किसको दें? सो इसमें हम डिसाइड करते हैं, हु डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि ये अथॉरिटी है? कौन डिसाइड करेगा कि ये, हु इज द अथॉरिटी, हु डिसाइड, ठीक है? हु डिसाइड कि ये लॉ, एक ये स्टेटमेंट एक लॉ है या ये रूल एक लॉ है, बेसिकली, ठीक है? अब कौन डिसाइड करेगा? अभी इसको इसी रिस्पेक्ट में आई सेड कि हु विल डिसाइड, हु विल अथॉरिटी, करेक्ट? अगर मैं इसी को मोनार्की में लेके चलूं, मोनार्की यू नो दिस थिंग जहां पे किंग, हेरिडिटरी किंग रहता है, किंग, वी हैव अ मोनार्की, वी हैव रिपब्लिक, वी हैव डेमोक्रेटिक, राइट? तो बेसिकली मोनार्की जिसकी हेरिडिटरी किंग होती है, उसमें देयर इज अ वन किंग, किसी एक राजा के पास ये ताकत होगी ये डिसाइड करने की कि ये कानून है, ये लॉ है। एंड द सेम है अगर हम पुराने कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री लाइक यूएसएसआर चले जाए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ वन सिंगल पार्टी दैट डिसाइड कि ये लॉ है। बट अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें ये ताकत लोगों के पास है। पीपल हैज अ पावर टू डिसाइड, एंड लोग कैसे करेंगे? हाउ विल द पीपल इनैक्ट देयर अथॉरिटी? थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड हु इज द रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? सो हु इज द डिसीजन मेकिंग पावर हियर? गवर्नमेंट। So कैसे हो रहा है? Represent, people are actually enacting their power, they're enacting their authority through the government. Remember this thing, through the representative. People लोग करेंगे, remember this thing, representative by people. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन डिसाइड करेगा? लोग ही करेंगे, लेकिन बाय रिप्रेजेंटेटिव। कौन? यू नो दिस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है? गवर्नमेंट को हम वोट करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट, कैसे? हाउ विल द पीपल enact their authority? Through a representative, by giving the vote, we elect a particular government, we elect the government to take a decision for us, ठीक है? तो ऐसे हम लेते हैं, so through a representative, और वो हम representative कैसे करेंगे? वोट से, सिंपल। So basically, okay. Now let's move forward to the limitations on the power of government. Before I move forward, let me do a quick revision to this thing. Coordination assurance में क्या था? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे थे। बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, एश्योरेंस के लिए एनफोर्स होना बहुत जरूरी है। सेकंड में क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, कौन लेता है, कौन हमारे लिए डिसाइड करेगा कि ये लॉ है? लोग, ऑफ कोर्स अ पीपल, लेकिन लोग इस कागज को कैसे करेंगे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नमेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस, वी विल डिसाइड हु विल गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर अस एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट ही तो है, ठीक है? नाउ
जस्ट इमेजिन, अब मैंने उसे अथॉरिटी दी थी कि नाउ गवर्नमेंट विल हैव अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन फॉर अस, आप डिसीजन लेगी। अब सोचो अगर मैंने उसे इतनी ताकत दे दी कि वो आप मेरे लिए कुछ भी डिसाइड करो, एक टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, दैट इज द आर्बिट्री। ठीक है, वाई आई इंट्रोड्यूस दिस थिंग, क्योंकि आने वाले चैप्टर में या लक्ष्मीकांत जब भी आप पढ़ेंगे ये टर्म इतना ज्यादा आएगा, आर्बिट्री हियर व्हिच मींस समवेयर अनफेयर तरीके से। ठीक है, अनफेयर इसका मतलब क्या होता है, अनफेयर। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, इसमें अगर हमें अथॉरिटी दी गवर्नमेंट को, भी हैव टू दे विल टेक अ डिसीजन फॉर एनीथिंग फॉर अस, हमारे लिए कुछ भी वो डिसीजन, हमने उनको अथॉरिटी दी है कि यू विल टेक अ डिसीजन। जस्ट इमेजिन नाउ वी हैव इलेक्टेड वन गवर्नमेंट, हमने इलेक्शन किया, कोई गवर्नमेंट हमें इलेक्ट करी, नाउ इट इज इन अ पावर, सो इट विल टेक अ डिसीजन व्हिच इज नॉट इन आवर फेवर। सोचो अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन मेकिंग करी और वो हमारे फेवर में नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में नहीं है, किसी सोसाइटी या किसी माइनॉरिटी, किसी सेक्शन या वुमेन जेंडर के लिए फेवर में नहीं है, सब है, पीपल आर नॉट अलाइन टू दैट, तो वो अब या फिर वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन मेकिंग, कोई लॉ लेके आते हैं, सो विच मीन्स दे आर आर्बिट्री, अनफेयरली टेकिंग अ डिसीजन, वो अनफेयर तरीके से वो ले रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे गवर्नमेंट अपना एक पर्सनल फायदा ना उठा सके, इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बहुत जरूरी है कि हम गवर्नमेंट की ताकत, उसकी पावर को एक लिमिट लगाए, एक लिमिट। हाउ वी पुट अ लिमिट ऑन द गवर्नमेंट, थिंक अबाउट योरसेल्फ, खुद से सोचो कैसे हमें गवर्नमेंट की ताकत को रोक सकती है। डोंट यू थिंक वी हैव अ फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कि गवर्नमेंट के पास, हमारे पास क्या है, अगर इनके पास ताकत है तो हमारे पास क्या है, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिकली आई सेड हमारे सिटीजन्स के पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन पुट द लिमिट ऑन दी गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स की वजह से लिमिट लग जाते कब, इमरजेंसी प्रोविजंस में या फिर उन सर्कमस्टेंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। वी विल रीड दिस थिंग लेटर, बस थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, बस बाद में पढ़ेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑब्वियसली, कभी ये सस्पेंशन चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द एस्पिरेशन एंड गोल्स, जो नेक्स्ट है। अब थिंक, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, गोल्स ऑफ सोसाइटी, एक्चुअली एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक है कि एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ, और पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बताते थे कि दिस इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, दिस इज अ डिसीजन, रेगुलेशन व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो, व्हिच द पीपल हैज टू फॉलो, और दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल डिसाइड, these are the rules, these are the laws the people will have to follow। but अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक, मॉडर्न एस्पिरेशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है, they will not only decide the power authority regarding, they will not only take a decision regarding authority, but they also take a decision कि क्या एक सोसाइटी, एक समाज के, एक अच्छे कंट्री, अच्छे देश के गोल्स, एस्पिरेशन क्या होने चाहिए ताकि वो एक बेहतर कंट्री बने, दैट इज व्हाट इट डिसाइड। तो बेसिकली किसी भी सोसाइटी की क्या एक एस्पिरेशन, क्या उसकी ख्वाहिश, कैसा एक आदर्श देश हो, वो समझना बहुत जरूरी है, और एक गोल उसका क्या होना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये चीज एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप ध्यान से देखो तो डीपीएसपी में, एफडी में, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट इज एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज में, हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है, करेक्ट। सो बेसिकली क्या हमारे एस्पिरेशन, क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, वो हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, व्हिच मींस इट गाइड द गवर्नमेंट, इट गाइड द गवर्नमेंट, दिस शुड बी द गोल्स। ऐसी एक आदर्श देश हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई इनइक्वालिटी ना हो, जिसमें कोई पॉवर्टी ना हो, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, करेक्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वी ऑल वांट कि हमारा देश जो है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम इनइक्वालिटी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो दीज आर लाइक एक्सेप्ट द मेनी थिंग्स, आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन सबसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, कुछ चीजें जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। लाइक इंडिया वांट टू बी, लाइक इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका, it want to be free of the racial discrimination से free होना चाहता है। At the same time, if you know कि FD fundamental duty जो है उसमें वो ये भी कहता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, you know how smart our framers of constitution were, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे बनाने वाले, वो कितने स्मार्ट थे। Okay, one thing which I have to mention here is decision making, coordination assurance, I think is in the same way यहाँ पे who will going to decide, one thing which point I have to add in, who will going to decide these things, remember यहाँ पे हमारे जो decision maker थे, जो constitution बनाने वाले थे, they are very scholars, they are very
एक्सपर्ट, ठीक है, बहुत स्कॉलर्स थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे. जस्ट थिंक एनी कोई भी संविधान, मान लो कोई भी, जस्ट इमेजिन, एग्जांपल देती हूँ मैं, कोई भी एक यू नो इफ एनी नोटिस कम्स, अगर कोई भी नोटिस प्राइम मिनिस्टर से आता है या कोई भी नोटिस एक सिंपल कोई ऑर्डिनरी पर्सन देता है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्राइम मिनिस्टर के नोटिस की. इफ ही मेक सर्टेन स्टेटमेंट, करेक्ट, व्हिच मींस उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, एक क्रेडिबिलिटी है, पीपल हैव सम ट्रस्ट इन हिम, ठीक है, तब वो डिसीजन मेकिंग. तो बेसिकली वो इंसान जिसमें लोगों की क्रेडिबिलिटी हो, पीपल ट्रस्ट ऑन हिम, द पर्सन हु हैज अ पावर टू कन्विंस, टू नेगोशिएट कि सी ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका एक डिसीजन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, तो पीपल विल हैव सम ट्रस्ट ऑन हिम. तो यहाँ पे याद रखना, who will decide, the person who is very expert, जो हमारे after Indian national movement people will have, they are themselves very popular. जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, B.R. अम्बेडकर, they are themselves very popular among the people, they are fighting for the people. So वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिनका लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट था, लोगों का उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था. बेसिकली एस्पिरेशन गोल. So coming back to this, I was just one point which I have to add here. So एस्पिरेशन गोल्स में बात करी थी, क्या हमारे गोल्स होने चाहिए? लाइक फ्री फ्रॉम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से फ्री हो, ठीक है, पॉवर्टी से फ्री हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है. ये दिस इज हाउ वी वांट कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल दिस होना चाहिए. एक आइडियल, इट शुड बी आइडियल कंट्री. एंड एट द सेम टाइम सिर्फ ये नहीं बताया है कि ये फ्री होना चाहिए, एट द सेम टाइम दे आल्सो एनेबल देम, एम्पावर देम, उनको ताकत भी दी है. एक टर्म आएगा यहाँ पे एनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है, एक टर्म यहाँ पे आएगा, दैट इज दी एनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है, एनेबलिंग प्रोविजन. इस चीज का और डिटेल वर्जन आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा. मैं इसका थोड़ा सा जिस्ट बता देती हूँ. एनेबलिंग टर्म से क्लियर हो रहा है, एनेबल मतलब आपको सक्षम बनाता है, आपको वो ताकत देता है, एम्पावर देता है. ऐसे प्रोविजंस, ऐसे रूल्स जो आपको ताकत, गवर्नमेंट, किसको? आपको, मतलब गवर्नमेंट, इट गिव्स एम्पावर to government, it gives the power to the government to take a decision to make the country a better ideal country which is free from inequality, just no, free from inequality, free from poverty, free from unemployment, caste discrimination. So it not only tells you, it does not only gives you a statement कि ऐसा ideal एक country होनी चाहिए, at the same time it also enables you and gives you a power, आपको ये ताकत भी देता है कि आप एक कंट्री को बेहतर बनाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो, जब आप देखोगे डीपीएस भी आप पढ़ोगे, इट टॉक्स अबाउट दी मैटरनिटी, इट टॉक्स अबाउट दी राइट टू वर्क, इट टॉक्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर, इन सब के बारे में. तो वी आर सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स, इतनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए काम करती हैं. सो वी हैव डन विद द एस्पिरेशन एंड गोल्स. लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक कि क्या, व्हाई डू वी नीड इट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक ना, बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक पे, ग्राउंड लेवल पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है. हमको किसको? सिटीजन्स को ना, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है इंडिया के लोगों को. तो पहली चीज यहाँ पे है, फर्स्ट थिंग इज एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है. आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग. मॉरल आइडेंटिटी देता है एंड नेशनल आइडेंटिटी भी देता है, ठीक है. आई एक्सप्लेन दिस थिंग. इसमें बस यही है फंडामेंटल आइडेंटिटी में, टर्म से बहुत ज्यादा कह रहे हैं. बेसिक आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे देता है? वी आर अगेन द सेम थिंग, वी हैव अबाइड बाय अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. हम एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सारे नागरिक. तो वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी हो गई कि भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू द स्कूल, आपके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्कूल में होते हैं कि हम फॉलो करेंगे जैसे, तो आपका स्कूल की एक आइडेंटिटी, यू गेट दिस थिंग, आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, एक आइडेंटिटी बन जाती है. सो इन द सेम वे पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी है, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते हो. मॉरल आइडेंटिटी की बात करते हैं. मॉरल टर्म से क्लियर हो रहा है, वी हैव सर्टेन मॉरल फॉर दैट. सेकंड, वी हैव द मॉरल आइडेंटिटी. टर्म से क्लियर हो रहा है, मॉरल आपको, आपके मॉरल्स को, व्हिच मींस इट गिव्स यू द फंडामेंटल वैल्यूज. कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपके पास, यू हैव, फॉर एग्जांपल, इन पॉलिटिकल आइडेंटिटी यू गॉट दिस फंडामेंटल राइट्स आपको मिले, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं यहाँ पे पॉलिटिकल आइडेंटिटी. हाउ डज अ मॉरल आइडेंटिटी रिलेटेड टू दिस फंडामेंटल राइट नाउ? तो बेसिकली फंडामेंटल राइट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप, बट इन ऑर्डर टू एंजॉय योर फंडामेंटल राइट्स और टू डू द थिंग्स, आप कुछ भी करोगे, यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ दिस थिंग्स, यू कैन नॉट टेक द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. बेसिकली डिसएडवांटेजेस ना लो आप. तो उसके लिए डूज एंड डोंट्स जो हैं, बेसिकली मॉरल आपकी वहां हेल्प करता है कि क्या आपके डूल्स है, क्या आपके डोंट्स है. यू कैन नॉट टेक अ डिसएडवांटेजेस. तो मॉरल कंपास आपको यहाँ पे ये अलाउ करता है कि दिस इज हाउ गिव यू अ मॉरल आइडेंटिटी. व्हाट, कैसे मिलेगा? वापस से
डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज से, और देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मॉरल आइडेंटिटी आपको देता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू और डीपीएसपी के थ्रू कि ये आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटी वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, सो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये मॉरल ड्यूटीज आपको, मॉरल आइडेंटिटी आपको देता है। अब नेक्स्ट है नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी, सी सबके कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, इतना रिलीजन, इतनी एथनिसिटी है, ठीक है, बट वी डू नॉट से, हम ऐसा नहीं बोलते। इफ एन वी आस्क, अगर हम आपसे पूछे कि आपकी nationality क्या है, when we ask this question we say we are Indian, we never say, when they ask you what is your nationality, you cannot derive your national identity out of your own traditions, out of your own religion, out of your, you cannot decide that, you say we are Indian, right, this is your national identity, you will not say you're Hindu, you will not say a particular religion, ऐसे नहीं बोलोगे। In case when it has been asked, you will say I am the Indian, so this is how I become your national identity, आपकी बन जाएगी, this is how you say this is Indian। When people will say German constitution में people will say this German, कि अलग अलग ट्रेडिशन से लोग आते हैं, तो we cannot say कि हमारी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर ग्रुप या माइनॉरिटी को हम अपनी आइडेंटिटी बना ले। They have one identity, that is the national identity, Indian identity। So next we have, okay, can we make a summary of these things? I'm giving you a little summary of it। See, coordination and assurance. Coordination gives you a basic rules and regulations which every citizen will have to follow। Assurance कैसे मिलेगा? जब उन rules and regulations का enforcement होगा, तभी मुझे surety मिलेगी ना कि मेरे ये rules and regulations follow किए जा रहे हैं। Next, I have decision making power। कौन decide करेगा मेरे लिए कि ये मेरे rules हैं? कौन decide करेगा ये rules हैं? Through people will decide, people will have some power, लेकिन how the people will enforce their authority? Through the representative। रिप्रेजेंटेटिव कैसे करेंगे? थ्रू वोटिंग। रिप्रेजेंटेटिव किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हैव अ पावर टू टेक अ डिसीजन फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन, हमने गवर्नमेंट को अथॉरिटी तो दी थी, लेकिन वो कुछ अनफेयर डिसीजन मेकिंग ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ लिमिट, एक लिमिट लगाई जाए उनके पास पे। कैसे लगाएंगे? थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स। देयर आर मेनी अदर वेज, बट वी आर स्टिकिंग टू फंडामेंटल राइट्स ओनली। फंडामेंटल राइट्स हमने सिटीजंस को दिए हैं कि वी कैन आल्सो एक्सरसाइज द फंडामेंटल राइट्स। आप भी अपनी इसकी, आप ही कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव द एस्पिरेशन एंड गोल्स। गवर्नमेंट के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक एस्पिरेशन, एक गोल्स है कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम इनइक्वालिटी, वी शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये आपके कुछ सर्टेन गोल्स है विच एवरी कंट्री हैव टू फॉलो। नेक्स्ट वी हैव द फंडामेंटल आइडेंटिटी। Fundamental identity, we need to have a political identity, moral identity, national identity, and we are into this session. Okay, so today we are end with our class, the first part of our constitution. For the further classes, please like, subscribe, and press the bell icon for the upcoming videos of Vision IAS current affairs and the other subject classes. Thank you so much. Radhe Radhe.